ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ये लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हैं और खाने पीने की सारी व्यवस्था इन किसान भाइयों ने खुद की है। मेरे पीछे एक गाड़ी है, उसमें भी बहुत सारे किसान भाई हैं और यहाँ पर भी एक किसान है। ये देख सकते हैं अचार का डिब्बा इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। ये लोग खुद यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। दूध, छाछ, चाय, चावल, रोटी सब यहाँ पर आ रहा है। आंदोलन कब तक चलेगा? आप बता दीजिए। 25 सरकार नहीं झुकी तो जी फिर अगे बाजू है जी, अगे लम्बा हो जाएगा जी, और लम्बा चलेगा जी, और भी लंबा हो सकता है। हाँ और भी लंबा होएगा जी। अच्छा, प्रकाश सिंह बादल के दरवाजे आपने बंद कर दिए, अब किसकी बारी है? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। मोदी सरकार को क्या कहेंगे? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ। कैप्टन साहब क्या कहते हैं? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ। अच्छा, ये हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? वो तो आप वो कह रहे हैं कि हम किसानों के हक में इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਆਪ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਹਾਰੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ। अच्छा, यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि हरसिमरत कौर बादल ने बोला है कि वो किसान की बेटी हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। आप बताइए। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 75-25 ਦਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਸਭ। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उससे खुश नहीं है आप? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਸਭ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ड्रामा है। अच्छा, एक बात बताइए, सब सरकारें दावा कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं। आपको कौन लगता है, कौन आपके साथ है? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, जो यहाँ पर युवा खड़े हैं, आप सबकी पढ़ाई चल रही है, इस वक्त में आप यहाँ पर आए, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰ ਜੂ, ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਾਹਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, किसानी खत्म हो जाएगी। ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇਖਦਾ, ਜੌਬ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜੌਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਜੌਬਾਂ ਜੋ ਆਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। यहाँ पे कमाई का साधन नहीं है। ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको बता दूं कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कमाई का साधन नहीं है। किसानों के जो बेटे बेटियां हैं वो इस खेती बाड़ी को छोड़कर विदेशों में काम करने जा रहे हैं, वो नौकरियां करने जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पर किसानी को खत्म सरकार ने किया है और 3 ऑर्डिनेंस जो लाई है सरकार, उनसे ये किसानी एकदम से खत्म हो जाएगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। ये आंदोलन कब खत्म होगा, मुझे ये बताइए। जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक। सरकार ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेगी, हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे। 25 तारीख तक को तो ऐलान हम कर दिया गया है। अगर सरकार 25 तारीख तक को ये ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला नहीं तो ये आंदोलन और भी तीखा होगा। ये दिल्ली भी पहुँच सकता है आंदोलन, मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। आपको बता दूं दोस्तों कि जो पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पर यह आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर है और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। पिछले 10 दिनों से मैं कवर कर रहा हूँ सिरसा, अबूशहर, चौटाला, कई गाँव को मैंने कवर किया और आज बादल साहब के गाँव में आया हूँ। इस खूबसूरत गाँव में लगभग 1 किलोमीटर तक किसान सड़क पर बैठे हैं। बादल साहब के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी ये लोग
खुश नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वास्तविकता में हमारे साथ है बादल साहब, तो वो एनडीए से गठबंधन तोड़े, उनसे अपना नाता तोड़े और किसानों के हक में आके स्टार्ट पट्टी पर यहाँ पर जहाँ पर ये किसान बैठे हैं वहाँ पर बैठे। और भी किसान भाई हैं। जी साहब आप बोलिए। मौत ਦੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। दिल्ली जाने का चैलेंज दे दिया जी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਰ ਬਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਕਰੋਨਾ ਜੋਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਦਾ ਕੇ। युवा जो है उसको बोलना चाहिए। ये बुजुर्ग कब तक बोलेंगे? बूढ़े हो गए हैं ये। आप बोलो अब, बताइए अपनी बात। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पलविंदर सिंह। पलविंदर सिंह। कब तक आंदोलन चलेगा? 25 तारीख तक। अच्छा, अगर सरकार नहीं झुकी तो क्या करोगे? तो हम और लाएंगे। और आंदोलन करोगे? प्रकाश सिंह बादल के दरवाजे बंद कर दिए, अब किसका बारी है? सबके बारी है। आपकी बारी है। दिल्ली अगर आंदोलन जाएगा तो दिल्ली जाओगे? जस यहाँ आंदोलन में क्या काम कर रहे हो आप? हम खाना लेके आए हैं सेवा। लंगर की सेवा कर रहे हो। कितना एक आप यहाँ पर देखिए कि किसानों का एकता कितनी है कि इन लोगों ने सबने मिलकर ये लंगर पाने की व्यवस्था की है। जो किसान इस वक्त कपास की फसल संभालना चाहिए था, जिस किसान को इस वक्त चावल की फसल संभालना चाहिए था, वो यहाँ पर सड़क पर बिठा रखा है सरकार ने। सरकार को इस बात का जवाब देना होगा। सरकार जो सारे उस कोरोना महामारी चल रही है, सरकार बोल रही है कि घर से बाहर मत निकलो। क्या सरकार को ये आंदोलन नहीं दिख रहे? वो ऑर्डिनेंस वापस ले और हम अपने घर में चले जाएंगे। हम अपनी जान हथेली पर रख कर आए हैं यहाँ पर। क्या हमें भी कोरोना से बहुत डर लगता है? लेकिन आप ये देखिए, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए ये ऑर्डिनेंस है। कोरोना से हमारे परिवार का एक ही सदस्य अगर मरेगा तो लेकिन हम सारे का सारा परिवार खत्म हो जाएगा। हमारी जो भविष्य, आने वाला भविष्य, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कल यहाँ पर एक किसान भाई ने जहर भी खाया था, अब उनकी हालत कैसी है? कोई हो नहीं, गंभीर ही है। बहुत नाजुक हालत है। वो बहुत परेशान थे, कर्जे की मार के नीचे थे। अगर उनकी फसल नहीं बिकेगी तो उन्हें यही परेशानी थी कि अगर मेरी फसल नहीं बिकेगी तो मैं कर्जा कैसे। ठीक है, आज एक किसान ने जहर निकला, अगर ऐसे चलेगा। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, जहर खाकर खुदकुशी करने वाले किसान कम है और सरकार के साथ टक्कर लेने वाले हम बहुत हैं। सरकार को हम बताना चाहते हैं भी हम दिल्ली भी पहुंचेंगे और तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे। जो भी हो जाए हम जरूर पहुंचेंगे। तो लगती हैं ऐसे है ना कि हम तो अभी किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। ऐसे हैं अभी जब अब लगे पे हैं ना कि हम मजदूर हैं, सभी काम पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कि हमें तो नाप चाहिए कि सब कुछ चाहिए, सरकारी भी फीस भी चाहिए। जो नौकरी है वो भी नहीं मिल रही है, आपको पता ही है। सब कुछ मिल रहा है कि हम तो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम तो भी लड़ेंगे सभी जरूर। अच्छा, एक बात बताइए ताया जी, यहाँ पर आड़तिये जो हैं, आड़त का काम करते हैं, वो भी जैसे हरियाणा में आड़तिये सपोर्ट में उतरे हैं किसानों के, यहाँ भी उतरे हैं? ਉਹ ਉਤਰਨਗੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। हाँ, यही तो है ना, हजारों लोगों का रोजगार चला जाता है। ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਮਰੂਗਾ ਜੀ, ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਮਲੀਮ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਲਣ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਧਾਨ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਮਰੂ, ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮਰੂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਮਰੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਊ। ਆ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਢੋਣੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਕੁੱਲ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान भाई जो है वो बहुत क्रोध में है और उनके बच्चे और जो है उन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, वो लोग यहाँ पर आकर उनका साथ दे रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल का जो दरवाज़ा है, गेट है उनका, मेन गेट जो है उसको किसानों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और अब किसानों का दावा है कि वो दिल्ली की संसद को भी बंद कर सकते हैं। वो कभी भी दिल्ली पहुँच सकते हैं अगर 25 तारीख तक उनकी बातों को नहीं माना गया। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, सही बोल रहे हैं जी।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਸਭ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ किसी को नहीं छोड़ोगे? ਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਭ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ।